Hello everyone. In previous videos we seen chapter number 1 to 4 and chapter number 10. Today we will see new chapter, that is the chapter number 8, human health and disease. What is human health? Disease, we know what is disease, right? Absence of disease, that is called human health. And disease means what? Presence of disease, or we can say uneven change in our body, like physically, mentally and socially, that is called disease. And human health means what? How can we define human health? That is absence of disease. Absence of disease, or we can say physical fitness, or physical fitness, that is called human health. And human health, that is also defined as the state of physical, mental and social well-being, that is called human health. And due to good human health, its productivity and capacity to function, it become rise. Productivity also become rise, and economically they also become very prosperity. हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल, मीन्स के उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बढ़ता है. एंड रिड्यूस फैटल एंड मैटरनल मॉर्टालिटी रेट, और वी कैन से रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टालिटी, के बेबी और मदर की डेथ को भी वो रिड्यूस करता है. कौन? ह्यूमन हेल्थ. सो देर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट I also written of chapter number 8 that you have to learn in this chapter. First is common disease in humans. What is common disease in human? You all are aware about some disease which cause us, right? For example, कौन से disease होते हैं जो हमको होते हैं? There is many example of disease. For example, typhoid, that have to learn. Malaria, cold, pneumonia, then escherichiasis, amoebiasis, elephantiasis, etc. That we have to learn in this chapter. And pathogens, that is, you heard about pathogens. Some organism harmful to us and some organism useful for us. Which organism useful for us, that you already studied in chapter number 10. In this chapter we also study the microbes which cause disease. Okay, there are many pathogens, that is bacteria, viruses, fungi, protozoan. Many pathogens we have to study, and which disease occur by these pathogens. So next topic, that is immunity. If we are suffering from any disease, okay, if we are suffering from any disease, in our body immunity provided by some cell, that is called lymphocytes, which is present in lymphoid organ. Which type of lymphoid organ? Primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. Which type of cell which provide us to immunity?
right? There are many information available in immunity. There are types of immunity: active immunity, passive immunity, innate immunity, right? So there are many immunity, and which molecule provide immunity, that molecule we have to learn with structure in this chapter. Then AIDS. What is AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome, which caused by HIV, human immunodeficiency viruses. This is infectious disease, okay, which is transmitted while having sex. Then about AIDS we have to learn in detail in this chapter. Then cancer. Cancer, that is non-infectious disease. How cancer will spread in our body, how cancer cause to us, राइट, कि कैसे कैंसर होता है, कैसे कैंसर का हमको डिटेक्शन करना होता है, और कैंसर होने के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी से, कौन से वे से, कौन सी मेथड से हम कैंसर को सिक्योर कर सकते हैं. नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर, already know about cancer: carcinoma, sarcoma cancer, carcinoma cancer, and leukemia cancer, right? And how cancer will spread in our body, that we have to learn in this chapter. And last topic, that is drugs and alcohol abuse. Means what? कि for example हम ड्रग लेते हैं, मीन्स के वो तो हम कोई डिजीज कॉज होता है तब भी लेते हैं एज ए मेडिसिन, राइट? सो मेडिसिन क्या है? वन टाइप ऑफ ड्रग. बट ओवर लिमिट में जब हम ड्रग लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, तब हमारी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर सकती, उससे एडेप्ट नहीं होती. दैट इज व्हाई हमको सिम्टम्स शो होने लगते हैं. तो ओवरडोज ऑफ ड्रग्स एंड ओवरडोज ऑफ अल्कोहल जब होता है, तब कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, क्या क्या कंडीशन क्रिएट होती है, बैड कंडीशन क्रिएट होती है, और उसको ओवरकम करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन से पर्सन से हमको सजेशन लेने चाहिए, वो सब डिटेल में दिया है, राइट? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर नंबर 8 एंड आई एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन. देन दूसरा, कि आपके हिसाब से हेल्थ मीन्स व्हाट, कि हम अपनी बॉडी को क्लीन रखें या फिर खाना अच्छे से खाए, ऐसा खाना खाए जिसमें न्यूट्रिएंट्स फुल अमाउंट में हो, राइट? डेली हम एक्सरसाइज करें तो ही आपकी जो बॉडी होती है वो अच्छे से वर्क करती है, अच्छे से फंक्शन करती है, राइट? यू हैव गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वी विल सी. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर. व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? You heard about genes, right, which is located on DNA, or we can say chromosome. Some changes occur in our body and we have genetic disorder, and this genetic disorder pass to one generation to next generation. That is why it is very difficult disease according to curable. So deficiency with which a child is born, and deficiency or defects which the child inherits from parents from birth. मीन्स के जेनेटिक डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? कि चाइल्ड में उसके पेरेंट्स थ्रू ही जीन जो जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, जो जीन्स म्यूटेशन हुए हैं, वो उनमें कैरी होते हैं चाइल्ड में, और चाइल्ड बड़ा होता है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं. देन इन्फेक्शन. व्हाट इज इन्फेक्शन? Infection means what? A symptom passed from infected person to healthy person. That is called infectious disease. Then lifestyle including food and water we take. Means के जो food ले रहे हैं, वो जो water ले रहे हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए जिससे हमारी health खराब ना हो. Rest and exercise we give to our body habits that we have to lack, etc. Okay. So दूसरा, कि हमको डाइट कैसा लेना चाहिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. पर्सनल हाइजीन मीन्स कि आपके हेयर, नाखून, स्किन, बॉडी सब क्लीन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन. एंड रेगुलर एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. इवन यू हैव टू डू योगा. ओके, योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस द टाइम इमॉर्टल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ.
कि योगा करने से फिजिकली तो हम फिट होते हैं बट मेंटली भी आप हेल्दी फील करते हो, राइट। अगर ऐसा कभी मेंटली स्ट्रेस आपको लगे तो ये सब करना आपको अच्छा लगेगा। इवन आप सिर्फ ओमकार मंत्र करोगे तो भी अच्छा लगता है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड बैड इफेक्ट्स ऑन अवर बॉडीली फंक्शन, मीन्स के कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऑर्गन के जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर अनइवन हो जाते हैं। वैक्सीनेशन मीन्स के इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। व्हाट इज वैक्सीनेशन? फॉर एग्जांपल हम रिसेंट डिजीज की बात करें कोविड-19, राइट। सो कोविड-19 की वैक्सीन अभी सर्च हो रही है, अगर आएगी तो हमको सबको लेनी पड़ेगी जिससे फ्यूचर में कोरोना ना हो और उसका डर भी ना हो। तो मीन्स व्हाट की मोस्टली हमको इन्फेक्शियस डिजीज की वैक्सीन लेनी होती है। इवन पोलियो वायरस की भी हम वैक्सीन लेते हैं, राइट। सो वैक्सीन क्या है एग्जैक्टली, इम्यूनाइजेशन क्या है, वो हम इस चैप्टर में आगे के पोर्शन में देखेंगे डिटेल में। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि जो हम वेस्ट जो हमारा घर का या फिर कोई भी हॉस्पिटल का या फिर कोई भी वेस्ट होता है वो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए प्रॉपर एरिया में। कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड, राइट। कि कंट्रोल ऑफ वेक्टर मीन्स व्हाट, कि जिससे डिजीज कॉज होता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई डिजीज है और दूसरा कि वो कोई पर्सन को डिजीज होने से, एक पर्सन डिजीज कॉजिंग है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है और उसका जो वाटर जो वो पीता है वो और जो फूड लेता है, मीन्स के उसके बाद उसमें से जो फेसियल मैटर होता है, मीन्स के स्टूल उसका होता है, वो स्टूल पर कोई वेक्टर मॉस्किटो या फिर कोई भी फ्रूट फ्लाई या फिर होम फ्लाई बैठती है और उसको वो फ्रूट और वेजिटेबल या फिर खाने की चीज़ पर वो बैठते हैं और फिर वो हम खाते हैं तो हमको डिजीज कॉज होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। सो ये वेक्टर का भी कंट्रोल होना चाहिए और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए फूड का ध्यान रखना है और वाटर रिसोर्सेज कि हम जिसमें से वाटर पी रहे हैं वो भी अच्छे से क्लीन एंड क्लीन होना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ गुड बने, ओके। देन दूसरा, when the functioning of one or more organ or systems of the body is adversely affected, characterized and appearance of various signs and symptoms, कि जब आपको डिजीज कॉज होता है तब आपको पर्टिकुलर साइन और अपीयरेंस होती है हमारे बॉडी पर, आपको पता चलता है कि आपको डिजीज है। और दो टाइप के डिजीज हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स व्हाट? and non-infectious disease. इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में आपको पता होगा, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही समझना है। इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स व्हाट? Disease which are easily transmitted from one person to another. Disease when transmitted from one person to another person, that is called infectious disease. There are many infectious disease. For example, first is AIDS, second is influenza, then hepatitis, HIV, hepatitis, then dengue fever, then Ebola, then tuberculosis. That is the infectious disease which is transmitted from one person to another person. But infected person में से ये transmit
होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स व्हाट, दे डू नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज फॉर एग्जांपल व्हिच given in your textbooks, that is cancer which cause death. Okay, cancer, then heart attack, then Alzheimer's, right, then diabetes, then another osteoporosis, which is occurring aged person, when male या female, right? So this is the list of infectious disease and non-infectious disease which is not given in your textbook, so you have to write according to this way in your notebook, right? So इस सेशन को हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, नंबर ऑफ डिजीज जो है मैंने लिस्ट बोला था, वो डिजीज हम स्टेप बाय स्टेप